Good morning, sir. Good morning. चलो शुरू करते हैं कथा. So we are in the part of conventional machining, and we are finding the metal removal rate, means the volume of the material which are removed during the machining, and it is in terms of volume per minute or volume per second. So we are see that the formula of MRR, means the material removal rate, is the cutting velocity into width of the workpiece and the thickness of uncut chip material. And similarly, we can say that the feed into depth of cut, when the velocity of cutting and multiply by the feed rate into the depth of cut. So for similar action, there is one another terminology which is known as specific heat energy. So finally, you have to remember the two formula of MRR. One is VCF into D, मतलब velocity of cutting velocity, feed and depth of cut, and velocity of cutting width of the workpiece and the thickness of uncut chip material. So VC is gone. Then there is one important relation you have to remember, that feed into depth of cut is equal to width into the thickness of uncut chip material. So all the terminology means is written here. So one another term is known as the specific cutting energy. मतलब क्या होता है इसका? The specific cutting energy का मतलब होता है कि कितना पावर कंज्यूम होगा एक यूनिट वॉल्यूम को निकालने में. मतलब कहने का, जब हम मशीनिंग करेंगे तो जो मटेरियल निकल गया, तो यूनिट मटेरियल रिमूवल के लिए कितना पावर जनरेशन, कितना पावर चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी. So specific cutting energy is always be determined by the power required divided by material removal rate. और पावर रिक्वायर्ड क्या है आपका? किसी भी कटिंग मशीनिंग में जो पावर रिक्वायर्ड होता है, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी. सो इसको अगर डिवाइड कर देंगे मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट क्या है? VC वेलोसिटी ऑफ कटिंग इनटू विड्थ ऑफ कटिंग इनटू द अनकट चिप मटेरियल. So VC
and VC will goes, and this one is equal to the force, cutting force divided by B, width of the workpiece and the uncut chip material, or B into T is also known as F feed rate into depth of cut. So specific cutting energy means you have to determine by this formula. Here I have written there. इस स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का मतलब ये होगा कि एक यूनिट मटेरियल रिमूव के लिए, इन मटेरियल रिमूव इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड और वॉल्यूम पर मिनट, एक यूनिट मटेरियल निकालने के लिए कितना पावर कंज्यूम करेगा मशीन. So this is determined by the cutting force divided by feed into depth of cut, or cutting force divided by width of the cut, width into the uncut chip material. So this one is energy required per unit metal removal. Now we can see some numerical problem, how the numerical problems are asked by the different competitive examination and university, and the competitive examination GATE ES में किस तरह का questions पूछे जाते हैं. Let us see the question number 1 in machining, that a cylinder is turned on the lathe with a orthogonal machining है, principal spindle rate of 200 rpm, मतलब ये टर्निंग ऑपरेशन है और स्पिंडल रोटेट कर रहा है, मतलब वर्क पीस रोटेट कर रहा है 200 rpm से. द एक्सियल फीड रेट, द टूल जो है एक्सियली फीड होगा, टूल जो है वर्क पीस पे, ये वर्क पीस रखा हुआ है आपका, टूल जो है, एक मिनट रुक जाओगे थोड़ा, ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन. आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? यस सर. ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि एक ऑर्थोगोनल कटिंग हो रहा है जिसमें जो वर्कपीस है वो टर्निंग मशीन पे, लेथ पे जो भी हो, वो रोटेट कर रहा है 200 आरपीएम से, और एक्सियल फीड रेट जो हम टूल को मूव कर रहे हैं along the rotation of the वर्कपीस, हम टूल जो मूव कर रहे हैं वो है 25 mm का मोशन दे रहे हैं. एक रिवोल्यूशन जब होता है तो 25 mm वो मूव कर जाता है टूल हमारा. सो दिस वन इज द फीड रेट. डेप्थ ऑफ कट का मतलब होता है कितना थिकनेस हम काटेंगे, वो हम क्रॉस हेड से, क्रॉस लाइट से हम लगा देते हैं मशीनिंग पे कि इतना डेप्थ ऑफ कट का हम फीड काटेंगे. ये डेप्थ ऑफ कट जब दिया रहे किसी भी एग्जांपल में, न्यूमेरिकल में, देन आपको कंसीडर कर लेना है कि दिस वन इज अनकट चिप मटेरियल थिकनेस. अनकट मटेरियल थिकनेस होगा वर्कपीस का जो अभी नहीं कटा है और कटने वाला है T1 T2. यू हैव टू कंसीडर इट. नाउ T1 इसको कंसीडर करना है, अनकट चिप थिकनेस होता है T1. सो डेप्थ ऑफ कट 0.4 mm. रेक एंगल ऑफ द मशीनिंग. रेक एंगल क्या होता है? जब वर्कपीस लगा होता है किसी भी, और जितना वर्कपीस से मान के चलो ये चिप फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जो टूल होता है, ये टूल के नोच से
परपेंडिकुलर खींचने पे और टूल के सरफेस से जितना एंगल बनाता है वो रेक एंगल होता है। सो रेक एंगल इज गिवन है 10 डिग्री, ये हम सब दिखा चुके हैं आपके एंगल में। एंड द एनालिसिस it is found that the shear angle is also given। shear angle भी given है। shear angle पता है कहाँ से लगता है? shear plane होता है जहाँ डिफॉर्मेशन शुरू होता है, उससे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो shear angle होता है। तो shear angle भी given है 27.75 डिग्री। फाइंड द थिकनेस ऑफ चिप प्रोड्यूस, जो चिप बनेगा, जो मशीनिंग होके निकलेगा चिप, उसका थिकनेस क्या होगा आपको निकालना है। और फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूजिंग द अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस जो टूल और वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन होगा उसको भी निकालना है। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले फ्रिक्शन निकालने के लिए आप एंगल ऑफ रिपोज निकालिएगा, फ्रिक्शन एंगल निकालिएगा अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी लगा के। और किसी भी मशीनिंग में, इन मशीनिंग में आपका म्यू और लैम्डा ये आपस में जुड़ा रहेगा, और जब तक म्यू नहीं पता रहेगा लैम्डा नहीं निकलेगा, लैम्डा नहीं पता रहेगा तो म्यू निकलेगा। तो ये चीज निकालना है। तो गिवन है आपका क्या? एन, फीड, डेप्थ ऑफ कट, रेक एंगल और शियर एंगल। इससे निकालना क्या है? T2 निकालना है। T2 मतलब चिप थिकनेस। T1 बाई T2 पढ़े थे ना, चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो जब T1 बाई T2 होता है मतलब T1 इज अनकट चिप थिकनेस एंड T2 इज चिप, Yes. जो चिप बन गया कटने के बाद वो होता है। तो हमें निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है यहाँ पे R निकालने के लिए, R होता है चिप थिकनेस रेशियो। और R निकालने का सबसे अच्छा बात यह है कि मेरे पास अल्फा और फाई दोनों गिवन है। जब अल्फा और फाई गिवन है तो अल्फा और फाई गिवन है तो हम आराम से निकाल सकते हैं चिप थिकनेस रेशियो। बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, कॉस फाई माइनस अल्फा, कॉस फाई माइनस अल्फा, अल्फा। सो ये फॉर्मूला से हम चिप थिकनेस रेशियो निकाल लेंगे। जब चिप थिकनेस रेशियो निकल जाएगा, देखो फाई इज गिवन 27.75 डिग्री एंड अल्फा इज गिवन 10 डिग्री। सो इस फॉर्मूला को लगाने के बाद आर जो निकलेगा आपका चिप थिकनेस रेशियो वो निकलेगा 0.488। अब आपको क्या निकालना है? एक्चुअली में T2 निकालना है, जो चिप का थिकनेस होगा, जो चिप बनेगा वो निकालना है। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 0.488 and T2 is not known and T1 is the uncut chip thickness is equal to depth of cut. So depth of cut is equal to 0.4 by T2 equal to 0.488। अब यहाँ से T2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। Now the second question is what is the coefficient of friction between the tool and the workpiece? So इसको अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी से निकालेंगे। अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी बताता है कि 2 फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा हमेशा 90 डिग्री होगा। और इसमें आपको 5 गिवन है, अल्फा गिवन है, लैम्डा निकाल लीजिएगा। सो लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 27 इंटू 25 मतलब ये 27 दूनी 54 एक 55 डिग्री समथिंग होगा, 7 दूनी 14 55 डिग्री के करीब होगा। और अल्फा 10 डिग्री है तो ये आ जाएगा लैम्डा 44.5 डिग्री। और tan लैम्डा का वैल्यू, tan लैम्डा
इज इक्वल टू म्यू। सो लैम्डा निकल गया तो आपका मतलब फ्रिक्शन एंगल निकल गया तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकाला जा सकता है। tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू गिवन है तो tan इनवर्स लैम्डा से आप tan इनवर्स म्यू से आप फ्रिक्शन कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। सो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अगर निकालना है तो लैम्डा का वैल्यू पता चल गया, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। सो tan लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे और ये हो जाएगा आपका coefficient of friction। नेक्स्ट आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि इन ऑर्थोगोनल टर्निंग स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी इज 20 जूल पर मीटर mm का क्यूब। मतलब स्पेसिफिक एनर्जी अगर गिवन है, इसका मतलब है कि पावर कंजम्पशन फॉर रिमूविंग ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज गिवन। मीन्स यूसी जो ऊपर पढ़ाए हम आपको कि पावर कंजम्पशन एक यूनिट वॉल्यूम को, मटेरियल को किसी भी वर्कपीस से हटाने के लिए जो पावर खर्च होता है, जो एनर्जी कंज्यूम होता है मशीन के द्वारा, दैट एनर्जी इज गिवन 20 जूल पर mm का क्यूब। नाउ द क्वेश्चन इज सेड द कटिंग वेलोसिटी, फीड depth of cut is also given respective, find the cutting force। fc का वैल्यू निकालना है, fc का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। uc इज गिवन है और uc का वैल्यू होता है पावर मीन्स कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फीड इनटू डेप्थ ऑफ कट, और VC इंटू MRR का वैल्यू होता है दिस वन। और इसको और भी लिख सकते हैं इस तरह से, FC VC डिवाइडेड बाय VC इंटू B इंटू T1। नाउ हमें दिया हुआ है VC, बट VC और VC खत्म हो जाएगा। सो हमको निकालना क्या है, FC मेरा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा कटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय फीड इनटू डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू यूसी। नाउ यूसी का वैल्यू गिवन है 20 जूल पर मीटर क्यूब, एफसी का वैल्यू नहीं पता है, फोर्स का वैल्यू नहीं पता है, और फीड का वैल्यू गिवन है, देखो फीड 0.4 और डेप्थ ऑफ कट 2 mm। सो फीड आपका 0.4 इंटू डेप्थ ऑफ कट 2 का लगाएंगे और यहां से FC का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो FC जो आएगा आपका वो आएगा 16,000 न्यूटन। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो पूछा गया है ये गेट का क्वेश्चन है। इस तरह का मशीनिंग का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, पावर कंजम्पशन, मेटल रिमूवल रेट, सब ये सब निकालेंगे, कटिंग फोर्स निकालने का। यहाँ पर देखिए कटिंग फोर्स निकाल भी बहुत सारे नॉर्मल फोर्सेस, कटिंग जितना भी मर्चेंट सर्कल में आप फोर्स देखे, वन मीन्स द शियर फोर्स, फीड फोर्स, कटिंग फोर्स नॉर्मल टू द शियर एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स which means the friction फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो सब फोर्स भी निकालने के लिए आप में किसी एक फोर्स या किसी दो फोर्स को निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द ऑर्थोगोनल कटिंग are tested is available। First, the rake angle given 10 degree, chip thickness ratio means R का वैल्यू दे दिया डायरेक्ट आपको 0.35, अनकट चिप थिकनेस T1 का वैल्यू आपको मिल गया 0.51, विड्थ ऑफ द कट, विड्थ मतलब B का वैल्यू 3 mm,
शियर स्ट्रेस मिल गया आपको। शियर स्ट्रेस मतलब शियर जोन जो होगा, शियर जोन जो होगा किसी भी मशीनिंग में, ये प्लेन जो होता है शियर जोन होता है, और यहाँ से एंगल शियर एंगल होता है। तो ये जोन में जो इस प्लेन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो स्ट्रेस आपको दे दिया गया है 285 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर शियर फोर्स निकल गया, तो अगर शियर फोर्स गिवन है, शियर स्ट्रेस गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है आपका। नाउ द थिंग्स इज डिटरमाइन द कटिंग फोर्स, रेडियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन द टूल एंड द शियर फोर्स। ये सारे फोर्सेस आपको निकालने हैं। तो सबसे अच्छी बात है इसमें कि शियर फोर्स आपको गिवन है, शियर स्ट्रेस गिवन है। जब शियर स्ट्रेस गिवन होता है तो शियर फोर्स आसानी से निकलता है। जब शियर फोर्स आसानी से निकलेगा कैसे, शियर स्ट्रेस में हम केवल एरिया ऑफ शियर जोन का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमारा शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो शियर स्ट्रेस निकालने के लिए T1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन फाई इंटू विड्थ। ये शियर एरिया था, हम देखे थे पिछले लास्ट क्लास में। शियर जोन में जो शियर एरिया होता है, ये मशीनिंग में जो शियर एरिया होता है वो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो स्लैंट हाइट है उसको निकालते हैं T1 बाई साइन अल्फा, और विड्थ ऑफ जो कट है, विड्थ ऑफ जो कट है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरा जोन का एरिया निकल जाता है। तो हम शियर फोर्स निकाल लेंगे आराम से। जब शियर फोर्स निकल जाएगा तो अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी से, सर्कल से मेरे को फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है R रिजल्टेंट इंटू कॉस फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा, और यहां से R का वैल्यू निकल जाएगा। शियर फोर्स निकल गया मेरे को, तो R का वैल्यू निकल जाएगा, और R अगर निकल गया तो कोई भी फोर्स आप निकाल सकते हैं। R रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे मिल गया तो कोई भी फोर्स निकाल सकते हैं, केवल अल्फा कॉस और फाई का जो प्रोजेक्शन होता है मर्चेंट सर्किल पे, उस मर्चेंट सर्किल पे से फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मर्चेंट सर्कल डायग्राम याद होना चाहिए। मर्चेंट सर्कल डायग्राम याद रहेगा तो कोई भी फोर्स, एक फोर्स निकल गया, शियर फोर्स निकल गया मेरे पास क्योंकि शियर स्ट्रेस था, विड्थ ऑफ द कट था और अनकट चिप थिकनेस था, तो उससे हमको एरिया निकल गया, शियर एरिया। शियर एरिया को हम शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो शियर फोर्स निकल गया। शियर फोर्स का फॉर्मूला मर्चेंट सर्कल से पता है तो रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। जब रिजल्टेंट फोर्स मिल गया तो कटिंग फोर्स निकालना कितना आसान है जो देखिए। हाँ, इसमें शियर एंगल नहीं दिया हुआ है, अगर शियर एंगल नहीं दिया हुआ है तो शियर एंगल निकालना बहुत आसान है। शियर एंगल का फॉर्मूला आपको चिप थिकनेस रेशियो दिया हुआ है, चिप थिकनेस रेशियो दिया हुआ है तो शियर एंगल निकाल लीजिए, अल्फा दिया हुआ है आपके पास। इसका एक और डायरेक्ट फॉर्मूला था tan अल्फा tan फाई इज इक्वल टू r cos अल्फा 1 माइनस r sin अल्फा। अल्फा गिवन है, आर गिवन है, सो आपका फाई का वैल्यू निकल जाएगा। फाई निकल गया, उसके बाद शियर स्ट्रेस निकाल लिए, इस फॉर्मूला से शियर फोर्स निकाल लिए। जब शियर फोर्स निकल गया तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए। जब रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए आप, जब रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए आप, देन आपका कटिंग फोर्स, आप मर्चेंट सर्किल देखिए, मर्चेंट सर्किल में कटिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होता है,
ये होता है आपका शियर फोर्स, ये होता है आपका कटिंग फोर्स। अब कटिंग फोर्स के बीच का एंगल, रिजल्टेंट के बीच का एंगल आपका होगा लैम्डा माइनस अल्फा। सो कॉस लैम्डा माइनस अल्फा आर का रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कटिंग फोर्स निकल जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको कॉस, आपको लैम्डा का वैल्यू पता है, म्यू गिवन है, म्यू गिवन है, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। सो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस लैम्डा और साइन लैम्डा का वैल्यू करके आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। मर्चेंट सर्कल याद रहेगा, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स का, हर फोर्स के साथ एंगल जो हम बताए थे वो अगर याद रहेगा तो मर्चेंट सर्कल से आपको जितना सारा फोर्स है वो निकल जाएगा। केवल एक फोर्स पता होना चाहिए। एक फोर्स पता होने के लिए हमेशा वो शियर स्ट्रेस का वैल्यू देगा। शियर स्ट्रेस का वैल्यू देने से शियर फोर्स निकल जाता है और उससे रिजल्टेंट निकल जाता है। अगर रिजल्टेंट निकल जाएगा तो आप मर्चेंट सर्कल में आप देख लीजिए, सारे फोर्स का रिलेशन हम मर्चेंट सर्कल में रिजल्टेंट फोर्स के, रिजल्टेंट फोर्स से हम कोरिलेट किए हैं। रिजल्टेंट फोर्स से कोरिलेट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर एक फोर्स, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट सेम प्लेन में लाई करता है। ये मर्चेंट बता के मर गया, ये आपको याद रखना है। जैसे न्यूटन पढ़ाकर बता दिया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वैसे ही आप याद रखिए कि जो फोर्स कटिंग मशीनिंग में जो फोर्सेस लगेगा वो मर्चेंट बता के चला गया। हर फोर्स के बीच में एंगल, उसी रिजल्टेंट निकाल के हर दो फोर्स के रिजल्टेंट सेम कॉलिनियर लाइन में लाई करेगा, और उसी का प्रोजेक्शन हर फोर्स के डायरेक्शन में लेने से आपका वो कटिंग फोर्स, शियर फोर्स, नॉर्मल फोर्स आपका निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स सब। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। सिमिलर फैशन पे आपको सारा कोर्स फोर्सेस है। इसमें कटिंग पावर कंजम्पशन निकालना है, यूसी का वैल्यू निकालना है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी निकालना है, पावर निकालना है। मतलब पावर होता है क्या, VC इन FC इंटू VC। आपको बहुत सारा पैरामीटर्स गिवन रहेगा, जैसे कि आपका डायमीटर ऑफ द बार इज गिवन, मतलब सिलिंड्रिकल बार है तो उसका डायमीटर गिवन है, RPM गिवन है, सो विड्थ ऑफ कट गिवन है, फीड गिवन है, फोर्स मेजर्ड ऑफ द कटिंग टूल पॉइंट FC, इससे कटिंग फोर्स गिवन है, कटिंग फोर्स गिवन है, फीड फोर्स गिवन है, कटिंग फोर्स गिवन है और फीड फोर्स गिवन है। दो देन आपको पावर कंजम्पशन निकालना है। कटिंग पावर कंजम्पशन, कटिंग पावर कंजम्पशन का मतलब है जो कटिंग में, जो मशीन को, जो वर्कपीस से जितना मटेरियल रिमूव हो रहा है वो कटिंग हो रहा है, और कटिंग में जो पावर लग रहा है वो FC इंटू VC होगा। फीड में जो पावर लग रहा है वो फीड फोर्स इंटू वेलोसिटी, फीड वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी, फीड वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी और चिप फ्लो वेलोसिटी का रिलेशन बताए हैं। उसमें फीड वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी का क्या रिलेशन है आपको वहां से मिल जाएगा। फीड पावर निकालना है, मतलब फीड फोर्स गिवन है, फीड फोर्स इंटू फीड वेलोसिटी। कटिंग पावर निकालना है, कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी इसमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालिएगा। आपको डायमीटर दिया हुआ है, कटिंग वेलोसिटी होगा पाई डी एन, मतलब डायमीटर ऑफ द वर्कपीस विच इज रोटेटिंग इज गिवन एंड द नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट इज गिवन। सो यहां से आपको कटिंग वेलोसिटी निकल जाएगा मीटर पर मिनट में, और इफ द डायमीटर इज इन mm में है तो mm पर मिनट में निकलेगा। और फिर जब आपका पावर निकल जाएगा तो स्पेसिफिक पावर, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी निकालने के लिए बहुत इजी है, आपको FC VC बाई F इंटू डी लगाना है और ये निकल जाएगा। या कटिंग पावर निकल गया, सीधे मेटर रिमूवल रेट VC इंटू VC निकल गया, कटिंग वेलोसिटी, और
उससे आपका मेटल रिमूवल रेट निकल जाएगा और स्पेसिफिक कटिंग पावर निकल जाएगा। फिर एनर्जी कंज्यूम इफ टूल इज इफ द टोटल मेटल रिमूवल ड्यूरिंग द टर्निंग इज 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलता है कि जब इतना मटेरियल रिमूव के लिए कितना एनर्जी चाहिए, इतना मटेरियल रिमूव हम करेंगे तो कितना एनर्जी खर्च होगा। तो यूसी मतलब स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी निकल जाएगा, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी होता है 1 यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए हमको जो पावर लगा, तो इतना यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है भाई, तो इतना यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए एक एक नियम से हम क्या करेंगे, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे निकल जाएगा कि कितना इस एनर्जी कंज्यूम हुआ इतना वॉल्यूम को निकालने में। सो सॉल्यूशन तो हम दे दिए हैं और डेरिवेशन भी कर दिए हैं। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज द हीट जनरेशन ड्यूरिंग द मशीनिंग। ये सब न्यूमेरिकल आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरा नंबर बात, ये क्लास जैसे ही 8 मिनट के बाद खत्म होगा आपको रीज्वाइन करना है क्लास, because I am going to cover the total heat generation, tool wear, material used in tool and the different types of tool failure। ये सारा चीज सिलेबस में है, सो ये सब कवर करेंगे यार। सो जैसे ही आपका टाइम ऑफ हो जाएगा, 8 मिनट बाकी है, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना है, सेकंड में क्लास अभी नहीं है। चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि हीट जनरेशन ड्यूरिंग द मशीनिंग कहाँ कहाँ होता है और कितना कितना इंटेंसिटी में होता है, और वो हीट को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। हीट इज ऑलवेज नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ मशीनिंग। हम वो हीट जो जनरेट हुआ उसको हम किसी चीज से यूज नहीं करते, उसको आइदर कूलेंट यूज करेंगे या फिर उस हीट को हटाना है, नहीं तो दैट हीट विल बी अफेक्ट आवर द टूल और द सरफेस फिनिशिंग ऑफ द मशीनिंग। वो टूल को इफेक्ट करेगा वो हीट, वो टूल में वियर क्रिएट करेगा, टूल को तोड़ सकता है, टूल को ज्यादा हीट जनरेशन टूल को मेल्ट कर सकता है, बट इतना हीट जनरेट नहीं होता है कि टूल को मेल्ट करे, टूल को तोड़ देता है, वियर ऑफ फेल्यूर होता है। सो सबसे पहले देखेंगे कि हीट जनरेशन कहाँ कहाँ पे होता है मशीनिंग में। सो हीट जनरेशन इन द मशीनिंग there are 3 heat affected zone present in the machining during the machining. The first heat generation zone is called the primary heat generation, secondary जहां पे हीट जनरेशन होता है उसको सेकेंडरी हीट जनरेशन, एंड थर्ड वो बोलते हैं टर्सरी हीट जनरेशन जोन। सो पहला बात कि प्राइमरी हीट जनरेशन जोन कहां पे है, तो जहां पे शियर डिफॉर्मेशन होता है, ये मशीनिंग है, ये मशीनिंग हो रहा है, वर्कपीस है, ये टूल है, ये चिप है। सो प्राइमरी हीट जनरेशन जोन इज विल बी द जोन ऑफ शियर। जहां शियर डिफॉर्मेशन हो रहा है वहां सबसे ज्यादा हीट का जनरेशन होगा। सेकेंडली जहां पे टूल और चिप, जहां पे टूल और चिप, क्योंकि टूल जो चिप जो है वो फ्लो करेगा टूल के रेक फेस पे, जो टूल का रेक फेस है उसके ऊपर से चिप को फ्लो होके निकलेगा। तो पहला चीज, दूसरा चीज है कि दूसरा जो हीट जनरेशन जोन है वो होगा आपका टूल और चिप के इंटरफेस पे। द थर्ड वन इज द टर्शियरी जोन। द पहला प्राइमरी जोन शियर डिफॉर्मेशन जोन में, सेकेंडली आपका टूल चिप इंटरफेस पे, और थर्ड होता है टूल और वर्कपीस के इंटरफेस पे। एक्चुअली द टूल और वर्कपीस के जोन में जहां पे टूल का फ्लैंक पार्ट वर्कपीस के नीचे से टच करता है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं। ये देखो ये एंगल जो है वो रिलीफ एंगल है, रिलीफ एंगल, और वी कैन से द क्लियरेंस एंगल between the workpiece and the tool, so that
the rubbing action can be avoided between the workpiece and the tool, so that the heat generation will be avoided, and the सबसे due to this clearance angle the less heat generation in between the tool and workpiece. So this one is called the tertiary zone. थर्ड, सो हम यहाँ लिख दिए पहला वन, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट जनरेशन होगा डिफॉर्मेशन जोन पे, दूसरा टूल फेस इंटरफेस पे सेकेंडरी जोन, एंड तीसरा आपका टूल और वर्कपीस के इंटरफेस पे हमारा जनरेट होगा, इसको बोलते हैं टर्शियरी हीट जनरेशन जोन. सो एक्चुअली द हीट जनरेशन का सबसे ज्यादा कारण है फोर्स, कटिंग फोर्स जो हम देते हैं, और पावर जो जनरेट होता है that will be converted into the heat, this FC into VC, and this FC into VC is actually the heat affected zone, and this heat affected zone will be divided into the primary heat generation zone and the secondary heat generation zone. So primary heat generation zone में आपका क्या आएगा, फोर्स, शियर फोर्स, यहाँ शियर फोर्स है और शियर वेलोसिटी, एंड इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, फ्लो वेलोसिटी, कटिंग फोर्स इनटू द फ्लो वेलोसिटी. सो ये दोनों को ऐड करने पे प्राइमरी हीट जनरेशन जोन, प्राइमरी हीट जनरेशन जोन में कितना हीट अफेक्टेड हुआ, और सेकेंडरी हीट जनरेशन जोन में कितना हीट, सेकेंडरी हीट जनरेशन जोन में कितना हीट जनरेट हुआ, ये दोनों निकल जाता है. सो फाइनली इट विल बी लाइक दैट. सो यहाँ पे हम ये सब बातें जो अभी किए वो हम डिस्कस किए हुए हैं. देयर इज द प्राइमरी हीट डिफॉर्मेशन जोन, देयर इज सेकेंडरी deformation zone at the tool chip interface, here the shear plane interface, and the tertiary heat deformation zone where tool workpiece interface is there. So this portion is basically touch the flank part with the workpiece, and so that it can be removed, this heat generation zone can be removed by providing the clearance angle between the tool face so that the tertiary heat generation zone can be neglected. Now ये जो हीट जनरेट हुआ, इसको देखना है हमको, जब कटिंग स्पीड, जब मटेरियल ये हीट जो जनरेट हुआ, इस जनरली डिपेंड करता है कि कटिंग वेलोसिटी मेरा क्या है, कटिंग स्पीड मेरा क्या है. हाई कटिंग स्पीड पे जब हम कटिंग स्पीड जैसे जैसे बढ़ाएंगे, स्पीड हम कटिंग का जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो हाई कटिंग स्पीड में जो चिप जो फ्लो करता है, जो वर्कपीस से जो मटेरियल रिमूव करता है, वो 70% ऑफ हीट मटेरियल के जोन से आपको बाहर करता है. क्योंकि हीट जनरेशन during the machining is a common phenomena, so actually we have to remove this heat, or we can the heat concentration we can be reduce. हमें हीट का concentration अपने मशीनिंग के जगह से कम करना है. So generally we have used the coolant, but practically हम क्या करते हैं कि एक मिनट, first of all I am taking your attendance, then we will talk to later. So you have to join again after 1 minute का ब्रेक के बाद आप फिर से ज्वाइन करेंगे. अभी हम आगे पढ़ेंगे आधा घंटा 1 घंटा और. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ खड़ा भी कर सकता है, कुछ सवाल जवाब भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है?